Hello everyone, we're going to have a very in-depth video about the various anti-malarial drugs because unfortunately, while this is a very important topic in Pakistan and the subcontinent, in India, etc., there aren't a lot of complete videos about it, and we will be considering this in full detail with respect to the concepts of clinical curative, radical curative, etc., as well as the various contraindications, the resistance mechanisms. But first of all, let's start with the prototype anti-malarial drug, which is chloroquine, which we don't use in Pakistan anymore at all because of the resistance which has developed in a wide majority of the countries. But in all those areas where resistance has not developed, say parts of the United States, it is the drug of choice because it is the most efficacious and the one with the least side effects. So this is something they can ask you, okay, what is the my apologies, what is the importance of chloroquine? Because it is always the drug of choice when the parasite is sensitive. Unfortunately, it is not sensitive to the drug in most of Southeast Asia and other areas in Africa, etc., where malaria is very predominant. Okay? So before talking about all of this very important stuff, we do need to consider the basics. We need to consider the pharmacokinetics, and we need to consider the pharmacodynamics, the mechanism of action, and then we will talk about all of this too. I want this to be as complete a video as possible. So I'm hoping you have a basic idea of how the malarial parasite infects. There's the vector mosquito, which takes a blood meal, and the sexual cycle of the parasite is complete within the mosquito, and the asexual cycle happens within human being, where the infective form of the parasite, known as the sporozoite, enters the blood because of the mosquito, goes to the liver, has its hepatic stage over there, where it might become latent if the infection is by certain species of Plasmodium vivax or Plasmodium ovale. But in most cases, after having gone to the liver and having caused widespread damage over there, basically the parasite in the form of the merozoite now enters the bloodstream and begins to infect the RBC, where it goes into trophozoite form, which is actually diagnostically important, and then into the merozoite form again, and it is a merozoite form which causes the RBC to rupture and the merozoites to enter the blood and infect further RBC. अच्छा, होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है ना, उसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, एंड द प्लाज्मोडियम इज सब्सिस्टिंग ऑन द हीमोग्लोबिन, और जब वो हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करता है तो हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि पोलीमराइज करके एक स्ट्रक्चर, एक केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में आते हैं, नोन एज हीमोजोइन, विच इज़ नॉन टॉक्सिक. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हीम बाई प्रोडक्ट्स दमसेल्व्स है ना, वो टॉक्सिक होते हैं प्लाज्मोडियम के लिए. जब आप क्लोरोक्विन देते हैं ना, तो क्लोरोक्विन क्या करता है, वो हीम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की पोलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से हीम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट करते हैं, एंड दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग जस्ट हाउ मच. ठीक है. रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुई? बिकॉज वी नो कि क्लोरोक्विन अब इस्तेमाल नहीं की जाती पाकिस्तान में कभी भी. एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है जिसकी एक्टिविटी बढ़ गई एज द पैरासाइट इवॉल्व्ड. ठीक है. और ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है ना, वो बेसिकली हीम के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को निकालता है बेसिकली प्लाज्मोडियम के अंदर से, ताकि वो जमा ही ना हो एंड देयरफॉर प्लाज्मोडियम की डेथ ना हो बिकॉज ऑफ द क्लोरोक्विन. तो ये जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है, ये भी एक ऐसी बात है जो कि जहन में होनी चाहिए. वेरी लाइकली टू कम अप इन एग्जाम्स. इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने पूछा था कि रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड के, विच इज़ एन एंटीबायोटिक. तो ये बातें याद रखनी चाहिए. एनीवेज, तो क्लिनिकल यूजेस क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर नॉन फैल्सिपेरम एंड सेंसिटिव फैल्सिपेरम मलेरिया. ऑब्वियसली ये किताबें बेस्ड होती हैं यूएस, यूके वगैरह में. आई डोंट नो ये ऑथर कहाँ का है, एंड दीज आर नॉट नेसेसरीली ट्रू फॉर पाकिस्तान में ये ड्रग ऑफ, बिकॉज ओवर हेयर almost all of them, all of the malaria, all of the plasmodium, they are resistant. ठीक है. अच्छा, सो ये पॉइंट है.
क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस बहुत जगहों पर कॉमन है। अच्छा, एक पॉइंट, एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड शिज़ोंटिसाइड, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? ब्लड शिज़ोंटिसाइड, जिसको हम क्लिनिकल क्यूरेटिव भी कहते हैं। ये बात समझ आनी चाहिए कि व्हाट डज़ दैट मीन, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है। जैसे हम पहले नहीं बात कर चुके कि बहुत सारी होती हैं स्टेजेस। देखो, सबसे पहले वो एंटर करता है प्लाज्मोडियम आपके ब्लड स्ट्रीम में, अभी वो हिपैटोसाइट की तरफ नहीं गया होता। इसको हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, अभी वो हिपैटोसाइट को इसने इन्फेक्ट नहीं किया। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कॉजल प्रोफाइलैक्टिक, वो इस स्टेज पर मार देती हैं प्लाज्मोडियम को एंड देयरफॉर एंड अप प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉजल प्रोफाइलैक्सिस। फिर होती हैं ब्लड शिज़ोंटिसाइड, जिनको हम क्लिनिकल क्यूरेटिव कहते हैं। और जो क्लोरोक्विन है ना, वो सिर्फ ब्लड शिज़ोंटिसाइड है। एंड ये बेसिकली किस स्टेज में मारता है प्लाज्मोडियम को? व्हेन इट हैज़ इन्फेक्टेड द आरबीसी। ये बात समझ आई? इसके अलावा भी होती हैं। फिर हम कहते हैं टिश्यू शिज़ोंटिसाइड। जो टिश्यू शिज़ोंटिसाइड है ना, उसको हम रेडिकल क्यूरेटिव भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये मार देता है बेसिकली आरबीसी, सॉरी प्लाज्मोडियम को, जब वो हेपाटोसाइट को इन्फेक्ट किया होता है। दिस इज रेडिकल क्यूरेटिव, ठीक है। रेडिकल क्यूरेटिव को हम एक और चीज़ भी कहते हैं। आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, बल्कि आप खुद ही लिख लें, यू आर फ्री टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, बट प्लीज़ डू गिव मी क्रेडिट। अच्छा, रेडिकल क्यूरेटिव टिश्यू शिज़ोंटिसाइड, क्लिनिकल क्यूरेटिव ब्लड शिज़ोंटिसाइड। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए सिर्फ। इसके अलावा कुछ होते हैं गेमिटोसिडल ड्रग्स, ठीक है, और कुछ होते हैं स्पोरोंटोसाइड्स। अब गेमिटोसिडल वाली बात थोड़ी मुश्किल है। देखो, एक बंदा इन्फेक्टेड है, जब उसको एक वेक्टर यानी एक मॉस्किटो बाइट करता है तो वो ब्लड में ऐसी फॉर्म को ले लेता है ना, विच कैन एंड बिकम अ स्पोरोजोइट एंड इन्फेक्ट अदर पीपल, तो वो गेमिटोसिडल वाली बात होती है। तो जो गेमिटोसिडल ड्रग्स होते हैं ना, वो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसकी ज़रा बात करेंगे, ये मज़े का पॉइंट है। और कुछ होते हैं स्पोरोंटोसाइड्स, ठीक है। ये मलेरिया की लाइफ साइकिल को मॉस्किटो के अंदर रोकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात जहन में रखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो ब्लड शिज़ोंटिसाइड्स हैं उनमें वी हैव क्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये जो है ना क्लोरोक्विन, वो एक ब्लड शिज़ोंटिसाइड भी है, एज यू कैन सी, एंड इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन, वो गेमिटोसिडल भी है, ठीक है। फोर्थ कॉलम इज़ फॉर गेमिटोसिडल। और से देखें, इज इट अ ब्लड शिज़ोंटिसाइड? येस, देयरफॉर इट इज़ क्लिनिकल क्यूरेटिव। व्हाट अबाउट रेडिकल क्यूरेटिव? नहीं, ये लिवर हिपैटोसाइट्स जो इन्फेक्टेड होते हैं उनका ये कुछ नहीं बना सकता। एंड देयरफॉर those plasmodium which are characterized by latent infection like plasmodium ovale and plasmodium vivax, उनके against ये effective नहीं होता, at least by itself. What about causal prophylaxis which is known as pre-erythrocytic? इसमें ये काम कर जाता है, as well as गेमिटोसिडल। गेमिटोसिडल ये definitely है, ठीक है, specifically vivax के लिए। किसके लिए? vivax के लिए। ये अहम बात है जिसको आपने कभी नहीं भूलना। We've talked about some stuff, causal prophylaxis, we've talked about clinical, and we've now talked about gemitocidal. ये क्या करता है? Is it clinical curative? बिल्कुल. As you can see over here, radical curative, no. Causal prophylaxis, yes, as well as gemitocidal. Gemitocidal किस तरह है? Gemitocidal वो इस तरह है कि it can basically kill the gematocytes of 5x but not falciparum. जो causal prophylaxis वाली बात है वो कैंडिजन में भी mentioned है। Causal prophylaxis means chemoprophylaxis, तो obviously ये करता है। So now that we have sufficiently emphasized the basic points that are needed for you to be able to understand the other drugs, is it clinical curative? Yes. Do we still use it? No, because of resistance. Is it still the drug of choice in areas where it is sensitive? Yes. Radical curative कभी भी नहीं, आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इन समवन हु हैज़ द लेटेंट इन्फेक्शन। व्हाट अबाउट कॉजल प्रोफिलैक्सिस? येस, लेकिन अब नहीं हम इस्तेमाल करते बिकॉज अगेन रेजिस्टेंस है। कॉजल प्रोफिलैक्सिस इज़ द सेम एज कीमोप्रोफिलैक्सिस
अगर आप कैटजंग से कोई को बुक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आई फील द नीड टू सॉर्ट ऑफ मेंशन इट कि दीज आर द सेम थिंग्स। जबकि क्लिनिकल क्यूरेटिव मीन्स ब्लड शिजोंटिसाइड, मीनिंग कि क्या ये इरिथ्रोसिटिक स्टेज को एलिमिनेट करता है या नहीं, एंड द आंसर इज इट डज ऑब्वियसली, एंड आई स्पेल्ड इट रॉन्ग बट ओके। रेडिकल क्यूरेटिव का मतलब होता है टिश्यू शिजोंटिसाइड। डज इट take care of the bacterium, my apologies, the protozoa when it is in the liver? Yes. Gametocidal, yes. ठीक है। अच्छा, एक जो बात मेंशन करने वाली है ना, वो बेसिकली इतनी सी है कि you need to know the fact कि ये वाइवेक्स के लिए तो गैमेटोसिडल है, doesn't mean कि वो बाकियों के लिए भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर लेनी चाहिए कि हम किसके लिए गैमेटोसिडल इसे कंसिडर करते हैं, फॉर वाइवेक्स। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मेंशन ही नहीं किए हुए इन कैटजंग। डजंट मीन कि यू डोंट नीड टू नो दिस बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक प्रोटोजोआ ऑब्वियसली। ठीक है, थेरेप्यूटिक, when do we use it? We've talked about the mechanisms, we've talked about क्लिनिकल पॉइंट्स में जो एक और चीज़ पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि क्या क्लोरोक्विन किसी और चीज़ में इस्तेमाल होती है अदर देन बीइंग एंटी मलेरियल। इसका आंसर है येस। एक तो ये इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इसलिए रूमेटाइड आर्थराइटिस में एक ज़माने में क्लोरोक्विन वाज यूज्ड। SLE, सार्कोइडोसिस, ये तमाम ऑटो इम्यून कंडीशंस है ना, SLE, सार्कोइडोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। एक जो बड़ी मज़े की बात है विच यू प्रॉबली डन व्हेन यू वर डूइंग द एंटी माइक्रोबियल वाला मॉड्यूल, वो ये था कि एमीबिक लिवर एब्सेस में आप क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जो क्लोरोक्विन है ना उसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि वो लिवर में जाकर जमा हो जाता है, सो इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, साथ में इट्स यूज्ड फॉर एमीबिक एब्सेस। कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए पता होना चाहिए कि हफ्ते में 500 mg देने पड़ते हैं फॉर कीमोप्रोफिलैक्सिस। जस्ट साइड इफेक्ट में क्या चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जो अहम बात है ना वो ये है कि जो इचिंग है ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इचिंग को क्या कहते हैं, वी कॉल इट प्रूराइटिस। ठीक है, एंड आई रिटन दैट ओवर हियर कि इचिंग इज़ द मोस्ट कॉमन। इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ लिखा हुआ है इचिंग येलो में। इचिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बट इट इज़ नॉट द ओनली साइड इफेक्ट। हेयर ब्लीचिंग हो जाती है, इवन थोड़ी डेंजरस किस्म की टॉक्सिसिटीज़ भी हैं इंक्लूडिंग कार्डियक अरिथमियाज, ECG में चेंजेस आती हैं, और इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटीज़ भी हैं। ठीक है, मायोपैथीज़ भी हो सकती हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को आप कभी नहीं देते हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट्स को नहीं देते हैं, पॉर्फायरिया वाले पेशेंट्स में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें प्रूराइटिस होता है और इसकी वजह से भी प्रूराइटिस हो रहा है। मायोपैथीज़ में कभी नहीं देते हैं, रेटिनोपैथीज़ में कभी भी नहीं देते बिकॉज आई पर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो टॉक्सिसिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है एज ऑलवेज। हाई डोजेस की वजह से प्रूराइटिस होता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होता है एज विटनेस बाई ECG चेंजेस। रेटिनल डैमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडिविजुअल्स विद रेटिनोपैथीज़। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, इट इज़ ओटोटॉक्सिक, इट डैमेजेस द आई। ठीक है, और पॉर्फायरिया के अटैक्स को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? एक तो इचिंग वाला पॉइंट है ना, इसके अलावा रेटिनल डैमेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओटोटॉक्सिक डैमेज, यानी ओटोटॉक्सिक है बेसिकली, इट डैमेजेस हियरिंग। मायोपैथीज, बेसिकली इट कॉजेज मायोपैथीज, इसलिए आपने माइस्थीनिया ग्रेविस में नहीं देना। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन चीज़ों में? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पॉर्फायरियस, उसमें बेसिकली प्रूराइटिस हो सकता है ना, और अगर आप ये ड्रग देंगे इस बंदे को पहले पॉर्फायरिया जो कि जेनेटिक कंडीशन है, मोस्ट केसेस में एक अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, माइस्थीनिया में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इट कॉजेज मायोकार्डियल डिप्रेशन विच कैन बी विटनेस्ड बाय चेंजेस इन दी ECG। तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है ना, देयर इज़ रेटिनल डैमेज, ओटोटॉक्सिसिटी, मायोपैथीज, पॉर्फायरिया वाला पॉइंट भी है। ठीक है ना। अच्छा, नाउ वी आर प्रीटी मच डन विद क्लोरोक्विन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट,
ये एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ऑस्पी में ना ऐसी चीज़ें बड़े बड़े मज़े से ही पूछ लेते हैं विच डोंट सीम दैट इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ी सी ना क्विर्की होती हैं, थोड़ी फ़र्क सी होती हैं, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू गिव इट विद इरिथमिक ड्रग्स। एक और जो मज़े की बात है और इम्पॉर्टेंट बात भी है वो ये है कि इट इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एंटी मलेरियल ड्रग्स आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और कौन से आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सेफ़ इन प्रेगनेंसी। आगे कुछ है कॉलम्स हिमोलिसिस और न्यूरोसाइकियाट्रिक। आई हैव लेफ्ट दीज आउट बिकॉज कोई ख़ास हिमोलिटिक टेंडेंसी नहीं है और कोई ख़ास न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है विच बी कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है, बट विच आर कंसिडर्ड विद अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स। फिर कॉलम है इरिथमिक इफेक्ट्स का और इन जनरल साइड इफेक्ट्स का। इरिथमिक इफेक्ट्स वाला मैंने फिल इन किया हुआ है बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट डज कॉज मायोकार्डियल। वो क्या साइड इफेक्ट है जो कि वो एक एमसीक्यू में पूछेंगे और आपसे कहेंगे कि ये किस में होता है। आई सेड देयर इज रेटिनल डैमेज एंड इट पर्टिकुलरली कॉजेज समथिंग नोन एज बुल्स आई मैक्यूलोपैथी। ये एकदम से डेवलप नहीं हो सकती, इन लोगों में होती है जो कि बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट यू माइट हैव नोटिस कि मैंने स्टार्ट वाले कॉलम में ये लिखा था कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, 3 डेज़ का। तो फिर ये बुल्सआई मैक्यूलोपैथी कैसे डेवलप हो सकती है। देखो हमने कहा था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी एक ज़माने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत इस्तेमाल की जाती थी, तो ऑब्वियसली क्रॉनिक इस्तेमाल हो गया विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बुल्सआई मैक्यूलोपैथी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है माइस्थीनिया ग्रेविस में, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। सो वी डन विद क्लोरोक्विन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्विनीन, क्विनिडीन्स एंड वील टॉक अबाउट आर्टिमीटर, आर्टेसोनेट, ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट क्विनीन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नो अबाउट द क्विनीन्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम 6 अमाइनो क्विनोलिन्स, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल फ़र्क है, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। सो दिस इज़ क्विनीन, ठीक है। जब मैं टेबल बना रही थी ना आई डिडंट थिंक दिस थ्रू, इसलिए ये नंबर 1 है, यू शुड बी रीडिंग दिस फर्स्ट एंड देयर इज़ नंबर 2 which is, my apologies, somewhere over here, quinine, ठीक है। क्विनीन की रैपिड ओरल अब्जॉर्प्शन है, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी शेयर्ड विथ क्लोरोक्विन। मेटाबॉलिज्म होती है प्राइमरीली, इसकी रीनल एक्सक्रीशन है। अच्छा, सिवियर इन्फेक्शन में आप आईवी क्विनीन देते हैं, इस बात को जहन में रखें, वील टॉक अबाउट दिस लेटर। सिवियर इन्फेक्शन में वी डू गिव आईवी क्विनीन, ठीक। सो वी फाइंड टॉकिंग अबाउट क्विनीन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता, हो सकता है क्लोरोक्विन जैसा ही हो, दैट इज थियोराइज्ड, बट वी डू नो कि ये बाइंड करता है हीम के साथ। अच्छा, जो कैडज़म के मुताबिक क्विनीन कम्प्लेक्स करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड। ज़ाहिर है डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है व्हेन द स्ट्रैंड्स डू नॉट सेपरेट एंड देयर इज़न्ट एनी ट्रांसक्रिप्शन टू आरएनए। क्विनीन क्या है, क्लोरोक्विन की तरह एक शिज़ोंटिसाइड है, ठीक है। व्हाट इज़ इट? It is a schizonticide like chloroquine. Is it a radical curative? Absolutely not. Is it used for chemoprophylaxis? Yes, इस्तेमाल किया जाता है। What about gametocidal? इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। Right now let's just talk about the basic points. Mechanism हमने डिस्कस कर लिया। Clinical uses क्या है? The main use of quinine is in P. falciparum infection which is resistant to chloroquine. बिकॉज पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ दुनिया में पी फैल्सिपेरम रेजिस्टेंट हो चुका है। तो अगर पी फैल्सिपेरम है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय क्लोरोक्विन, तो व्हाट डू यू गिव क्विनीन। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एज रेलिवेंट इन पाकिस्तान बिकॉज यहाँ क्विनीन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, बट ये बातें फिर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। द मेन यूज़ ऑफ क्विनीन इज़ इन द पी फैल्सिपेरम इन्फेक्शन जो कि रेजिस्टेंट है, जो कि ओरल ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं, सही है। क्विनीन की ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज़ होती हैं, ठीक है, ओके। इसीलिए आप नॉर्मली ना उसको कपल थेरेपी में देते हैं। यू गिव इट विद आइदर डॉक्सीसाइक्लिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक बट विच ऑल्सो हैज़ यूजेस एज एन एंटी-मलेरियल, ठीक है, या फिर आप क्लिंडामाइसिन के साथ देते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक है। इसका मकसद क्या है, बिकॉज जब आप किसी और ड्रग के साथ देते हैं ना तो ड्यूरेशन कम हो जाती है, बेसिकली रेजिमेन की ना शॉर्टर ड्यूरेशन हो जाती है एंड दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये पता होना चाहिए, क्विनीन इज़ नॉर्मली गिवन विद क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन टू रिड्यूस द डोजेज, ठीक है।
अगर सिर्फ आप अकेले देना, इफ़ यू गिव इट अलोन, तो फिर आपको पूरे हफ्ते के लिए देनी पड़ती है, अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दें तो फिर, या क्लिंडामाइसिन के साथ दें तो फिर आपको सिर्फ 3 दिन के लिए देनी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब हम ज़रा आगे देखते हैं। अच्छा, और भी इसके यूजेस होते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम के लिए इस्तेमाल करते हैं ओरली। अगर बहुत ही सख्त किस्म का फैल्सिपेरम इन्फेक्शन हो तो फिर आप आईवी देते हैं, बिकॉज वी नो वी कैन डू दैट। लेकिन अगर इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है और अनकॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आप नॉर्मली ओरली देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। यू यूज़ इट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट फैल्सिपेरम मलेरिया। आगे ज़रा पढ़ते हैं। और हम ना इसको इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं सेरिब्रल मलेरिया के लिए, विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। देखो, क्विनीन होता है और क्विनिडीन होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? जो क्विनिडीन है ना, ये पता होना चाहिए, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर है, डी आइसोमर है। वो आईवी इस्तेमाल किया जाता है सिवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम के लिए, ठीक है। इस बात को हम इधर लिख लेते हैं। क्विनिडीन क्या है? डी आइसोमर है। क्विनिडीन इज द डी आइसोमर, ठीक है। यूज्ड आईवी, आप आईवी देते हैं फॉर सिवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम, जबकि आप ओरल कब देते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम के लिए। सिवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम के लिए आप क्विनिडीन देते हैं आईवी, और आप ओरल किस चीज़ के लिए देते हैं? ओरल किस चीज़ के लिए देते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम के लिए। इफ़ रेजिस्टेंट टू क्लोरोक्विन। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको सही तरीके से समझ आई, क्योंकि इफ़ यू डोंट फुली अंडरस्टैंड समथिंग, आप हमेशा गलतियाँ करते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 बातें याद रखें, सिंकनिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन। सिंकनिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन। अब सिंकनिज्म क्या चीज़ है ये पता होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Synchronism, hypoglycemia, hypertension. But what is synchronism and what are the findings? Synchronism एक ऐसी कंडीशन है जिसमें होता है नंबर 1 टिनाइटिस। टिनाइटिस से क्या मतलब? रिंगिंग इन द ईयर्स सेंसेशन, डेफनेस, आवाज़ का ना आना, सर में दर्द, हेडेक, नोजिया, फ्लशिंग होती है, फ्लश्ड अपीयरेंस होती है, हीटेड फेस एंड रेड फेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में दिक्कत, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम होना। सिंकनिज्म में टिनाइटिस है, डेफनेस है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, हेडेक है, फ्लशिंग है और हाइपोथर्मिया है। सिंकनिज्म में ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है और हाइपोटेंशन होता है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सिंकनिज्म, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लें, ऊपर लिखें सिंकनिज्म, नीचे लिखें हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड कोने में लिखें हाइपोटेंशन, सिंकनिज्म के साथ लिखें टिनाइटिस है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, हेडेक है, फ्लशिंग है, ठीक है। सो दीज आर दी एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ क्विनीन एंड क्विनिडीन। अभी दीज आर द रिलेटिवली नॉन फेटल साइड इफेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, हियरिंग डिस्टर्बेंसेस गंदा होता है एंड कैन बी डिबिलिटेटिंग। सेम विद विजुअल डिस्टर्बेंसेस, नॉट वेरी आइडियल। और जीआई सिम्टम्स, नोजिया, क्यूटेनियस फ्लशिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली क्विनीन एंड क्विनिडीन की वजह से इरिथमियाज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। इसीलिए over here I wrote arrhythmic effect and the answer is yes, absolutely। कोई अच्छा खासा होता है। किसके साथ होता है? because of QT prolongation, IV क्विनिडीन के साथ, जो कि हम कब देते हैं? IV क्विनिडीन हम तब देते हैं जब एक सिवियर इन्फेक्शन हो और कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपेरम इन्फेक्शन हो। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? टॉर्सैट। आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दिस, लेकिन दिस इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ ट्रिगर्ड बाय QT प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और ज़ाहिर है जब आप IM देते हैं तो एब्सेसेस हो सकते हैं और कुछ जनरल सी बातें हैं, ठीक है। सिंकनिज्म इज़ बेसिकली अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इन केस वाइवा में आपने कहा सिंकनिज्म, उन्होंने कहा ये होता क्या है, तो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है बिकॉज ऑफ सर्टन
substances found in the drug. तो अगर वो substances किसी और drug में हो तो you do see synchronism in other places. और synchronism में क्या होता है? अच्छा, ये जो synchronism है ना, ये एक relatively common बात है, लेकिन sometimes एक सही वाला hypersensitivity reaction हो जाता है to cinchona which is present within quinine and quinidine. उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है क्योंकि हेमोलिसिस शुरू हो जाती है. सो देयर इज हेमोलिटिक पोटेंशियल एंड दिस कैन लीड टू एन यूरिया, यूरिन का ना आना और रीनल फेलियर. तो ये बात भी ध्यान में रखें. ठीक है. हाँ, अगर वो पूछे समटाइम वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट डू वी मीन कि देयर इज एट्रोपिन लाइक इफेक्ट ऑफ क्विनीन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या फ़र्क, क्या बात, एट्रोपिन किधर, क्विनीन किधर. एक्चुअली फ्लशिंग जो होती है ना, ठीक है, which is a part of synchronism is something which we normally see with atropine. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि atropine like effect होता है sometimes when you give quinine or quinidine and you see that side effect. तो ये वाइवा टाइप पॉइंट है. ड्रग इंटरैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलने वाली बात है. ठीक है. ड्रग इंटरैक्शन क्या है? यू आर नेवर सपोज टू गिव क्विनीन और क्विनिडीन विद अनदर एंटी-मलेरियल ड्रग मेफ्लोक्विन. उसकी वजह ये है कि न्यूरोसाइकियाट्रिक इफेक्ट्स आते हैं विद द यूज़ ऑफ क्विनीन, और मेफ्लोक्विन के इस्तेमाल से भी यही न्यूरोसाइकियाट्रिक इफेक्ट्स आते हैं, बल्कि मेफ्लोक्विन के थोड़े ज़्यादा आते हैं. सो ओवर हियर आई हैव दिस राइट, न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफेक्ट्स, जिसमें लिखा हुआ है यस. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? नेवर गिव विद मेफ्लोक्विन विच एज आई मेंशनड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंटी-मलेरियल ड्रग, because उसके भी वही side effects हैं and those side effects add up and these are very very bad. This is very very bad basically. You never give quinine or quinidine if mefloquine was administered previously. You go for an alternate drug. ठीक है, आप एक alternate drug इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, if that person has already been on quinine quinidine. अच्छा, डाइजॉक्सिन एंड वॉर्फरिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. ठीक है. और अगर इसकी वजह से रीनल फेलियर हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डिसकंटिन्यू अगर हीमोलिसिस के साइंस हों, हाइपर सेंसिटिविटी के साइंस हों या सिंक्रोनिज्म के साइंस हों. ठीक है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ऑफन टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पेशेंट है, उससे क्विनीन पर है पेशेंट, अब उसने सिंक्रोनिज्म के इफेक्ट्स शुरू हो गए, आपको समझ नहीं आता कि अच्छा ये हाउ डेंजरस आर दीज, इज दिस समथिंग यू विल टेल द पेशेंट कि होता है एक्सेप्टेड, और इज दिस समथिंग जो कितना डेंजरस है जिसकी वजह से आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है. सो यू नीड टू नो कि डिसकंटिन्यू इफ साइंस ऑफ हिमोलिसिस, सिंक्रोनिज्म अपीयर. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में. ठीक है. You're not supposed to give this in renal failure. You're not supposed to give this in renal failure, and इसलिए I've written this over here. कि डोजेज ऑल्टरेशन की कब जरूरत पड़ती है? रीनल फेलियर में. रीनल फेलियर में देना ही नहीं चाहिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं एक और सेट की.